नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। गौरभूताश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोचत। Mother Earth assumed the form of a cow. Very much distressed, with tears in her eyes, she appeared before Lord Brahma and told him about her misfortune. इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। ब्रह्मा तद उपधार्यार्थ सह देवैस्तया सह जगाम स त्रिनयनस तीरम क्षीरपयोनिधे। Thereafter, having heard of the distress of Mother Earth, Lord Brahma with Mother Earth, Lord Shiva and all other demigods approached the shore of the ocean of milk. Purport. After Lord Brahma understood the precarious condition of the earth, he first visited the demigods headed by Lord Brahma, Lord Indra, who are in charge of the various affairs of this universe, and Lord Shiva, who is responsible for annihilation. Both maintenance and annihilation go perpetually under the order of the Supreme Personality of Godhead. As stated in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinasaye cha duskritam. Those who are obedient to the laws of God are protected by different servants and demigods, whereas those who are undesirable are vanquished by Lord Shiva. Lord Brahma first met all the demigods, including Lord Shiva. Then, along with Mother Earth, they went to the shore of the ocean of milk, where Lord Vishnu lies on a white island, Shvetadvipa. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitansya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भूमि माता है, जो भूमि देवी है, वो गाय का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई हैं और ब्रह्मा जी से अपने स्थिति को
वो बता रही हैं, Mother Earth assumed the form of a cow, very much distressed. With tears in her eyes, she appeared before Lord Brahma and told him about her misfortune. तो माता जो है भूमि देवी, वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई हैं और ब्रह्मा जी से अपने दुख को, वहां पर अपने वृत्तांत को वो सुना रही हैं। और उससे पूर्व श्लोकों में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो धरती के ऊपर जब वैसे राजाओं का बोझ बढ़ जाता है जो क्षत्रिय राजा हैं, परंतु वो धर्म को त्याग कर जब वो राक्षसी व्यवहार को वो अपना लेते हैं तो वह धरती के ऊपर वो बोझ हो जाते हैं। और इस प्रकार जब धरती जो माता है वो इस प्रकार के आसुरी लोगों के बोझ को सहन नहीं कर पाती है, तो वो उससे छूटने के लिए, उस बोझ को कम करने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गई हैं गाय का रूप धारण करके, जिससे कि ब्रह्मा जी के करुणा को वो जगा सकें। और ब्रह्मा जी ध्यानपूर्वक भूमि देवी के व्यथा को, उनके कष्टों को, उनके दुख को वो श्रवण करते हैं। और उसके बाद श्रवण करने के पश्चात ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भूमि देवी के जो बोझ है उसको कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसी हेतु ब्रह्मा जी पहले यहाँ बता रहे हैं कि देयर आफ्टर हैविंग हर्ड ऑफ द distress of Mother Earth, Lord Brahma with Mother Earth, Lord Shiva and all other demigods approached the shore of ocean of milk. तो ब्रह्मा जी शिव जी को बुलाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं और उसके बाद वो इंद्र आदि देवताओं को भी बुलाते हैं और सभी देवताओं को बुलाकर वो क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है, शिव जी हैं और सारे देवी देवता जो हैं वो क्षीर सागर के तट पर जा रहे हैं। और हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि किस प्रकार से वो क्षीर सागर के तट पर जाकर वो भगवान की कृपा की वो याचना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान को निवेदन करते हैं कि आप आइए और धरती माता के बोझ को कम कीजिए। तो ऐसा है कि भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए होता हूँ। तो भगवान जब आते हैं तो धर्म की रक्षा करते हैं और धार्मिक लोगों की रक्षा करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं और इस प्रकार दुष्टों का वो संहार करते हैं। इस प्रकार वो धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी जब धरती माता के कष्टों को सुने तो सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, यह निश्चय किया कि जो ब्रह्मा जी, शिव जी हैं, देवी देवता जो हैं, वो धरती के कष्टों को उनसे नहीं हल्का कर सकते। धरती के जो माता है, पृथ्वी माता है, उसके बोझ को वो कम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब यहाँ अवतरित होंगे तभी धरती के बोझ को कम किया जा सकेगा। वो ही जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो धरती के बोझ को कम कर सकेंगे, पृथ्वी के बोझ को कम कर सकेंगे। और इस प्रकार से निश्चय करके ब्रह्मा जी, शिव जी और देवी देवता जो हैं वो सभी क्षीर सागर के तट पर भगवान की कृपा की याचना के लिए वहां पर जाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कठिनाइयों को, अपने जीवन की जटिलताओं को वो समाप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वो भगवान के शरण में ना जाए। जब तक कि जीव कृष्ण के शरणागत नहीं होगा, उसके जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके जीवन की जो जटिलताएं हैं, उसके जीवन के जो कष्ट हैं, उसका निवारण नहीं हो सकता है। हम आधुनिक युग में देखेंगे कि लोग जो हैं वो नाना प्रकार की व्यवस्था को बनाते हैं, नाना प्रकार की व्यवस्था को उत्पन्न करते हैं संसार के कष्टों से मुक्त होने के लिए। वास्तव में हम देखेंगे तो जीव जब से जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तक वो हमेशा कष्टों से ही निवारण पाने का उपाय करता रहता है।
जब बालक का जन्म होता है, बड़ा होता है, वो पढ़ाई करता है, नौकरी लेता है, विवाह करता है और अपना संसार बसाता है, धन कमाता है, घर बनाता है और अपना प्रॉपर्टी बनाता है, संपत्ति बनाता है और उसके जो है रिलेटिव्स होते हैं, उसके सगे संबंधी इत्यादि चीज़ों को बनाता है, उसमें बहुत गर्वान्वित महसूस करता है। परंतु वह ये नहीं जानता है कि जब तक वो कृष्ण को शरणागत नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसके जीवन की जटिलताओं को, इसके जीवन के मूल दुखों को नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा कदापि संभव नहीं है। प्रहलाद महाराज भगवत गीता में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है, मतिर्न कृष्णे परतः सतोबा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभिर विसदाम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। तो जो व्यक्ति इन जिन व्यवस्थाओं को करने का प्रयास कर रहा है, वो व्यवस्था जो है उसे उसके जीवन के जटिलताओं से, उसके जीवन के कष्टों से उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। वह जो है उसका जो प्रयास है वह पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम है, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाम। जो जिन चीजों को, जिन व्यवस्थाओं को वो कई पहले जन्मों में कर चुका है, उन्हीं व्यवस्थाओं को भी वापस यहाँ करने का प्रयास कर रहा है। जैसे जो जीव है उसका इतिहास संसार में कोई नया नहीं है। वह जीव जो है अपने कर्मों के हिसाब से यस्वेंद्र गोप मथवेंद्र महो स्वकर्मा बंधानुरूप फलभा जन्मा तनोति कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो जीव है वो कभी देवता बनता है, कभी ब्रह्मा बनता है और कभी इंद्रगोप बनता है। तो अपने कर्मों के अनुसार वह पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में वो फिर रहा है, वो घूम रहा है। और मनुष्य जीवन पाकर जिन व्यवस्थाओं को वो बनाने का प्रयास कर रहा है, वो व्यवस्थाएं जो हैं अपने आप में उसके जीवन के जटिलताओं को, उसके कर्मों को नष्ट नहीं कर सकती है। उसके कर्मों को नष्ट करने के लिए उसे भगवान की शरण लेना आवश्यक है। जब तक वो कृष्ण का शरणागत नहीं होगा, उसके जीवन की कठिन जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो मिट नहीं सकती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य पुनर्जन्म। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो जीव है वह संसार में आ ब्रह्म भुवना लोका, इस संसार के लोक जो है उसमें वो घूम रहा है और मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब वो कृष्ण के शरणागत होता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो वास्तव में जो संसार में जो जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो अपने कठिनाइयों अपने कठिनाइयों को मिटाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास उनकी कठिनाइयों को उनको नहीं मिटा सकते हैं। इस संसार में जो भी प्रयास होता है, संसार में भौतिक समस्याओं को मिटाने का जो प्रयास होता है, वो प्रयास जो है और दूसरी समस्या को उत्पन्न करती हैं। और इस प्रकार ऐसा होता है कि जो उपाय होता है वह भी एक दूसरी समस्या को उत्पन्न करता है। और इस प्रकार जीव जो है वह संसार में कर्मों के चक्र में हमेशा फंसता रहता है, हमेशा कर्मों के चक्र में बंधा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जो है मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरा अच्छी स्त्री से विवाह हो जाएगा या अच्छे पुरुष से मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति विवाह करता है तो विवाह से नई समस्या की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार जो है जैसे जैसे वो कर्म करता रहता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा से या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर जो भी कार्य करता रहता है, वो कार्य जो है वो सारे कर्म जो हैं और दूसरे कर्मों को वो प्रकट करते हैं, दूसरे जटिलताओं को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से जो भौतिक संसार में सुख पाने के लिए जो जीव प्रयत्नशील रहता है, जो प्रयास करता है, वो जो है वो सारे प्रयास जो हैं वो इल्यूजरी हैं, वो मोह को उत्पन्न करती हैं, वो जो है जीव जो है वो मोह से उसे परे होना है, लेकिन उसके प्रयास जो हैं वो उस मोह को उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति संसार में जब
पढ़ लेता है, उसको नौकरी मिलती है या कोई कार्य करता है, तो वो बहुत प्लानिंग करता है कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे इतना धन आएगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ ऐसा प्रयास करूंगा, मुझे और इतना आएगा। और इस प्रकार वो निरंतर निरंतर वो क्या होता है कि प्रयास करता रहता है, और वो अपने वर्तमान को भविष्य को ठीक करने के लिए वो जीता है। वो सोचता है कि मैं वर्तमान में बहुत मेहनत करूंगा ताकि मेरा भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा, मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा, मैं जीवन में बहुत शांति से और बाद में बहुत आराम से जीवन बिताऊंगा। लेकिन इस प्रयास में वो क्या करता है कि दूसरी चीजों को खड़ा करता है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए वो और प्रयास करता है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए और प्रयास करता है, वहां से आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसकी आयु कैसे खत्म होती जा रही है। सुबह दिन होता है, सुबह सूर्य उगता है, दिन होता है, वो कड़ी मेहनत करता है, रात में सोता है, फिर सुबह उठता है, फिर मेहनत करता है, और इस प्रकार वो अपने भविष्य को ठीक करने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है, बहुत कड़ा संघर्ष करता है। परंतु वह यह नहीं जानता है कि उसका भविष्य किस प्रकार से उज्जवल हो सकेगा। संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई व्यक्ति दूर होने का प्रयास नहीं करेगा, तो अंत में तो उसको क्या मिलेगा, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही मिलेगी। क्योंकि जिन प्रयासों में वो लगा हुआ है, प्रयत्नशील है, जिन कार्यों में वो प्रयत्नशील है, वो कार्य उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं करा सकते हैं। और निरंतर प्रयास करता रहता है, भविष्य को सोचता रहता है, प्रयास करता रहता है, भविष्य को सोचता रहता है। और धीरे 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 समय जो है इतना सूक्ष्म है कि समय की गति का उसे भान नहीं होता है, उसे आभास नहीं होता है, और धीरे धीरे समय जो है, जो काल है, उसको मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देती है। भागवत में कहते हैं, आयु हरति वयि पुंसाम उद्यम अस्त च यन असो तस्यार्थे यच्छनो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो जो व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि जो सूर्य सुबह उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, उसके एक दिन जो है उसे काल के मुंह में और ढकेलता जा रहा है, वह काल के मुंह में और निगला जा रहा है, काल रूपी सर्प जो है उसे निगल रहा है, उसका उसे आभास नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं होता है। और इस प्रकार वो इस प्रकार के कार्यों को करता रहता है जो उसके जीवन में और ज्यादा मोह को उत्पन्न करने वाले हैं। तो वस्तुतः व्यक्ति भौतिक प्रयास करके, भौतिक कामनाओं से प्रेरित होकर, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को साधने के हेतु जो प्रयास करता है, वो प्रयास जीव को कभी भी सफल नहीं कर सकते हैं, जीव उसके दुखों को कभी भी कम नहीं कर सकते हैं। और यही चीज यहाँ पर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जो धरा के ऊपर जो बोझ है उसको सिर्फ भगवान ही कम कर सकते हैं, भगवान के शरणागत होने से ही वो बोझ जो है वो कम हो सकता है। इस संसार में लोग जो हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। लोग जो हैं अनेक जो उनके जो वांछा है, भौतिक वांछा है, उससे प्रेरित होकर, उसको तृप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर वो अनेक देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता, वो सोचते हैं सिद्धम ही मानुषे लोके, तो वो वही सोचते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ देवताओं के पास जाऊंगा और मेरा जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार जो लोग हैं, सोमवार को कुछ उपवास करेंगे, मंगलवार को कुछ और करेंगे, बुधवार को कुछ और करेंगे, इस प्रकार नाना प्रकार से वो देवी देवताओं के शरण में अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए जाते हैं। और वास्तव में जीवन की समस्याओं को समझ में नहीं पाते हैं। वो इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित होकर, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर वो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के वहां पर शरणागत होते हैं, वहां पर जाते हैं और उनसे उनकी उपासना करते हैं, जिससे कि उनकी भौतिक इच्छाएं तृप्त हो सके। परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवी देवता जो हैं वो स्वयं भगवान विष्णु के पास उनकी कृपा की याचना करने के लिए क्षीर सागर के तट पर गए हैं। तो यह देवी देवता ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, हम संसार में अपने जीवन की जटिलताओं को, अपने जीवन के कष्टों का निवारण नहीं कर सकते हैं, यह संभव
नहीं, कदापि नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। एक बार एक राजा था और उस राजा की 4 रानियां थी। तो ऐसा हुआ कि वो राजा जो है उसको एक असाध्य रोग हो गया और राजा जो था वो मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। और चूंकि वो अपनी पत्नियों से प्रेम करता था तो उसने जो है अपनी पत्नियों को बुलाया और पूछा कि देखो, ऐसा है कि अब मैं थोड़े समय के बाद मैं देह को त्याग करने वाला हूँ, तो कौन आप मेरे साथ जो है वो देह त्याग करके मेरे साथ कौन आएगा, मेरे यात्रा में कौन मेरे साथ रहेगा। तो ऐसा हुआ कि जो पहली पत्नी थी उससे जब पूछा तो पत्नी ने कहा कि राजा ने कहा, देखो मैंने तुम्हें इतना सब बहुत ठीक करके रखा, बहुत संभाल के रखा, तुम्हें दिन रात तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें अच्छा भोजन कराया और अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, तुम्हें हीरे जवाहरात से तुम्हें सजाया, तो तुम मेरी बहुत प्रिय रानी हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि तुम मेरे साथ मेरी यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में, इस जीवन के आगे जो है यात्रा है उसमें मेरे साथ में चलो। तो रानी ने कहा कि नहीं राजन, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, ये संभव नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। तो राजा जो है उदास हो गया और उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और दूसरी पत्नी से कहा कि देखो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखता था, तुम्हें कोई भी आवश्यकता रहती तो मैं उन आवश्यकताओं की मैं हमेशा पूर्ति करता था और इतना सारा धन वैभव जो था तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ बनाया, इतना राज्य सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, तो तुम कृपया करके मेरी यात्रा में मेरे साथ चलो मृत्यु के उपरांत। तो रानी ने कहा, दूसरी रानी ने कहा कि नहीं राजन, ये संभव नहीं है और मैं तो आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, और ऐसा है कि जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी मैं तो दूसरे के पास चली जाऊंगी, मैं दूसरे से विवाह कर लूंगी और उसके पास चली जाऊंगी। फिर राजा ने तीसरी रानी को बुलाया और तीसरी रानी को बुला के कहा कि आप मेरे साथ चलोगे तो मैंने आपका इतना ध्यान रखा, आपकी जब भी कोई डिमांड होता था मैं आपको पूरी करता था, तो आप मेरे साथ मेरी यात्रा में चलो। तो रानी ने कहा कि ऐसा है राजन, मैं आपको आपकी यात्रा में आपके अर्थी तक जा सकती हूँ, जहां पर आपका शमशान तक जा सकते हो, शमशान से आगे मैं नहीं जा सकती हूँ। तो उसके बाद राजा जो था बहुत मायूस हो गया और उसकी एक पत्नी थी जिसका राजा कभी ख्याल नहीं करता था, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था और उसको हमेशा नेग्लेक्ट करता था, ध्यान नहीं देता था उसके ऊपर। और उस रानी को जब बुलाया तो रानी जो थी वो बहुत राजा का ध्यान रखने वाली थी और वो हमेशा देखती कि राजा को कोई कष्ट ना हो और राजा जो है वह धर्म के मार्ग पर चले, और इस प्रकार से वो राजा की शुभचिंतक थी और राजा की सबसे अच्छी वो मित्र थी, परंतु राजा ने उसे हमेशा उसकी उपेक्षा की थी। तो जब राजा ने बुलाया उस रानी को, चौथी रानी को, और चौथी रानी को बुलाने के बाद जब राजा ने चौथी रानी को बुलाया और चौथी रानी को बुलाने के बाद जब राजा ने कहा कि क्या आप जो है, 1 सेकेंड प्रभु जी, हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा। बीच में कॉल आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, इट इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार राजा जो था वो की 4 रानियां थी और विभिन्न रानियों को उसने बुलाया और चौथी रानी जो थी वो राजा के साथ जाने के लिए वो तैयार हुई। तो राजा जो था वो विलाप करने लगा कि देखो, जिस रानी को मैंने कभी हमेशा उपेक्षा की, जिसको कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, वही रानी जो है उसको मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया। जो मेरा सबसे परम मित्र था, मैंने उसकी उपेक्षा नहीं की, और जो मेरे मित्र वास्तव में नहीं है, मैं उनके पीछे मैं अपने पूरे जीवन को व्यय कर दिया। तो जो पहली रानी है जो ये कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, वह जो है हमारा शरीर है।
तो हम इस संसार में अपने शरीर को जन्म से लेकर मृत्यु तक खूब सजाते हैं, खूब खिलाते हैं, उसको हृष्ट पुष्ट रखते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो कामनाएं होती है उस कामनाओं से शरीर को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, और उसको खूब हीरे जवाहरात जो हैं उसके ऊपर इतने सारे आभूषण जो है उससे उसको लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, और अलग अलग प्रकार से वस्त्र से उसको सजाते हैं। परंतु यह शरीर जो है यह मृत्यु के बाद हमारा साथ छोड़ देता है, यह शरीर हमारे साथ नहीं जाता है। और जो दूसरी रानी है वह जो है वो हमारे धन और संपदा है, जो हम धन चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, तो ये सारी जो है वो दूसरी पत्नी है। तो क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है ये सारा जो है उसके रिलेटिव्स के पास चला जाता है, वो उसके पास नहीं रहता है। और इसलिए दूसरी रानी कहती है कि नहीं, जैसे आपकी मृत्यु होगी मैं तो दूसरे से विवाह कर लूंगी। तो ये जो धन और संपदा वाली रानी है वो दूसरे के साथ विवाह करती है, वो दूसरे के पास चला जाता है, वह भी उस जीव के पास नहीं जाता है। और तीसरा जो है वह है हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो सगे संबंधी हैं। तो जब जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सगे संबंधी कहाँ तक जाते हैं? जो स्त्रियां होती हैं वो घर के द्वार तक जाती हैं, और जो पुरुष होते हैं उसको लेकर, अर्थी लेकर वो शमशान तक जाते हैं, और शमशान में उसकी यात्रा वहीं शमशान के आगे वो उसके साथ नहीं जा सकते हैं। तो जिन चीज़ों के पीछे व्यक्ति अपना समस्त जीवन को व्यय कर देता है, नष्ट कर देता है, वो उसके साथ वस्तु अंततः नहीं जाते हैं। और जो चौथी जो पत्नी है, जो चौथी रानी है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा जीव का हमेशा हितैषी होता है। भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो कृष्ण जो है वो परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति। तो कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में हमारे सुहृद मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सुहृद मित्र है। और हम ज्ञान के अभाव में, अज्ञानतावश हम परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हमें समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में वास्तव में मूल्यवान वस्तु क्या है, परमात्मा कौन, हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। इस ज्ञान को हम अर्जित करने का प्रयास नहीं करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में अपने जीवन को व्यय कर देते हैं। तो यह इस प्रकार का जो जीवन है, धर्म स्वनस्थितः पुंसाम विश्वक्षेण कथा सुय नोत्पाद ये यतिरितिम श्रम एव ही केवलम। भागवतम कहता है इस प्रकार का जो जीवन है जिसमें कि तथाकथित रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से व्यक्ति जो है वो कार्य करता है, तो यह जो है वह श्रम एव ही केवलम, वो व्यर्थ का श्रम है। इस प्रकार के श्रम से जीव को कोई लाभ नहीं होता है, जीव को कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। तो जो वास्तव में जो वैल्यूएबल चीज है उसको हम नहीं समझते हैं, और जो जीवन में हमारे लिए जो कंकड़ पत्थर के समान है, पेबल्स के समान है, पेबल्स एंड स्टोन्स है, उसके पीछे हम हमेशा हमेशा भागते रहते हैं, ये समझकर कि यही हमारे जीवन में सब कुछ है। परंतु जो मनुष्य जन्म का ध्येय है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जो वास्तव में जो जीवन का ध्येय है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं करते हैं, उस ज्ञान को हम अर्जित नहीं करते हैं, और इस प्रकार से हम व्यर्थ की चीजों में अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, जो जीवन में वास्तविक रूप में मूल्यवान नहीं है। जब तक ये शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं जो हैं वो मूल्यवान है, परंतु वो शरीर तक ही सीमित है, वो शरीर से बाहर नहीं जाएंगे, शरीर से आगे वो नहीं जाएंगे। परंतु जो जीव है उसका वास्तविक स्थान जो है, वास्तविक जो रूप है वो जीवात्मा का है, वो आत्मा है। इसलिए जो कार्य आत्मा के लिए किए जाते हैं वो जीव में वास्तव में जीव के लिए हितकारी होते हैं। परंतु जीव जो है मोह में इतना फंसा रहता है, वो लोभ में इतना फंसा रहता है कि उसे अपने जीवन के ध्येय का भान नहीं होता, ध्येय का ज्ञान ही नहीं होता है। एक बार मैं जब छोटा था तो एक बार मैं एक टीवी में किसी प्रोग्राम को देख रहा था। उस समय जो था हम जब बालक थे तो टीवी नई नई आई थी, और हम उस समय बहुत शौक होता था टीवी देखने का, क्योंकि एक नई वस्तु थी। और
उस समय जो था टीवी में इतने ज़्यादा कार्यक्रम भी नहीं आते थे, विशेष समय पर विशेष चीज़ें आती थी, बाकी टाइम वो बंद रहता था। तो मैंने देखा था कि एक बार एक स्टोरी दिखाई गई थी। तो उस स्टोरी में एक राजा होता है, एक जमींदार होता है, उसके पास बहुत बड़ा लैंड होता है और वो आदमी को कहता है कि ठीक है, आपको इतनी पैसा देना है और इस पैसे से आप जितना जमीन को माप लोगे सुबह से शाम तक, वो जमीन आपकी हो जाएगी। उसके पास बहुत वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड है, बहुत बड़ा, उसमें जंगल भी है, झील भी है, खेत भी है, मकान भी है, बहुत बड़ा जगह है। तो एक व्यक्ति जो है वो लालची व्यक्ति है और वो सोचता है कि मैं सुबह से शाम तक, मुझे बहुत समय है और मैं दौड़ूंगा, इतना पूरी इसकी संपत्ति को माप लूंगा और इतने छोटे से कम धन में मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति जो है वो दौड़ता रहता है, उसके पीछे पीछे राजा के जो घुड़सवार हैं वो दौड़ते हैं और जगह जगह पर ध्वजा को डालते जाते हैं, मार्क करने के लिए कि ये जगह को उस जगह से उस जगह को क्लेम कर रहा है। तो व्यक्ति जो है सुबह सूर्योदय के समय दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो सोचने लगता है कि ये खेत जो है बहुत उपजाऊ है, तो इसको मैं कवर करता हूँ, इस लैंड को। फिर आगे देखता है कि जंगल है, तो सोचता है जंगल से मुझे लकड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो इस प्रकार से मुझे जंगल को भी कवर करना है। जंगल को भी कवर करने जाता है और उसके बाद फिर आगे जाता देखता है कि झील है, बहुत सुंदर झील है, इसमें बहुत स्वच्छ जल है, उसमें पक्षियाँ हैं, कमल के पुष्प हैं। तो वो सोचता है अरे झील तो मुझे खेत करने के लिए, पानी करने के लिए लगेगा, तो वो सोचता है मैं इसको भी एनसर्कल कर लेता हूँ, इसको भी चारों तरफ उसको घेर लेता हूँ ताकि ये भी मेरा हो जाएगा। और इस प्रकार वो जंगल को कवर करने के लिए दौड़ता है, फिर झील को कवर करने के लिए दौड़ता है और इस प्रकार दौड़ता जाता है। उसके मन में विचार चलते रहते हैं, ये भी चाहिए मुझे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और इस प्रकार होते 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 वो दोपहर खत्म हो जाता है, संध्या आनी प्रारंभ हो जाती है। फिर उसे ध्यान आता है, अरे अरे अब तो सूर्य अस्त होने वाला है और मुझे वापस जाके उसी पॉइंट पे जाना है जहां से मैंने दौड़ा था, शुरू किया था। यदि मैं उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो क्या होगा कि जो जितना भी मैं मेरा धन जो दिया हूं वो और जितना पूरा मेहनत किया हूं वो सब व्यर्थ चला जाएगा। तो जब उसको ध्यान होता है, वो इतनी दूर चला जाता है कि उसके लिए संभव नहीं होता है कि वह वापस उस जगह पर आ सके। और क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, पूरे दिन का थका हुआ है, ना उसने पानी पिया है, ना उसने खाया है और थक गया है, थक के चूर चूर हो गया है, पसीने से लथपथ हो गया है। फिर भी उसे उस जगह तक जाना है, इसलिए दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और उसमें गिरता है। फिर उसे ध्यान आता है, अरे मुझे वहां तक पहुंचना नहीं, तो ये सारा जो है ये मेरा नहीं होगा, सब चला जाएगा। और इस प्रकार से वो फिर उठता है, फिर दौड़ता है और इस प्रकार वह व्यक्ति जो है उस जगह जहां से शुरू किया था वहां से आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह जो है बालकपन में मैंने इसको देखा और मैं सोचता था कि व्यक्ति जो है उसकी कैसी मति मारी गई है कि जब वो चीजों को जब देखता है कि ये मुझे इन सारी चीजों को अर्जित करना है, तो यह वो भूल जाता है कि मुझे वापस कहां पर जाना है। वो उस बात को ही भूल जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि मैं कहां तक गया हूं और मुझे वहां से वापस आना है। इस चीज को वो विस्मृत हो जाता है, वो भूल जाता है। तो यही एक बद्ध जीव का जीवन है। बद्ध जीव का जीवन जैसे ही वो जन्म लेता है और जैसे जैसे बड़ा होता है, नाना प्रकार की इच्छाएं उसके हृदय में प्रकट होने लगती हैं और वो इन इच्छाओं को पीछे पाने के लिए वो इतना प्रयत्नशील हो जाता है, इतना मोह से मोहित हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का हेतु क्या है, मेरे जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, वो उसे भूल जाता है। और इसी मोह में वह कठिन प्रयास करते हुए मामैव अंशो जीवलोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती। जो भी कि जीवात्मा है वह कृष्ण का अंश है, कृष्ण से संबंध जोड़ना उसके लिए उसे मानव जन्म मिला है, परंतु उसे भूलकर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के, वह मोह से जनित, जो मन से जनित जो इंद्रिय तृप्ति है उसकी इच्छा करके वह निरंतर भागता रहता है, निरंतर भागता रहता है। भागते 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 एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, एक दिन उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वह अपने जीवन के लक्ष्य से वंचित रह जाता है। तो वस्तुतः संसार में जो समस्याएं हैं
उसका निराकरण एकमात्र भगवान की शरण में ही संभव है। जैसा कि यहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देव जो हैं, वो सभी धरती के बोझ को कम करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का जो है आश्रय ग्रहण करने के लिए, उनकी कृपा की याचना करने के लिए वो श्वेत द्वीप के वो तट पर जा रहे हैं। तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि संसार में जीव का कल्याण एकमात्र कृष्ण के शरणागत होकर ही संभव है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी चेष्टा करते हैं, उस चेष्टा से हमें भगवान के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए, भगवान को समर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तो हमें यह इस बात को बार बार स्वयं को स्मरण दिलाना है कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वह भगवान के चरण कमल है, और भगवान के चरण कमल की सेवा जो है वह जीवन का लक्ष्य है, और संसार के जो मोह जनित जो इंद्रिय तृप्ति है वो हमारे जीवन का लक्ष्य कदापि नहीं है। यदि हम इंद्रिय तृप्ति के इच्छा से, उसकी इंद्रिय तृप्ति के वेग से यदि हम बाध्य हैं, फिर भी हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए कि यह इंद्रिय तृप्ति जो है मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवान की सेवा है। और ये जो कृष्ण की सेवा है, जो भक्ति में सेवा है, इसमें इतना आनंद आता है जीव को कि उस आनंद को ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे जो है वो इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा जो है, इंद्रिय तृप्ति की जो चेष्टा है उसमें ह्रास होना शुरू होता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे भक्त जो है वह साधना के मार्ग पर, साधना भक्ति के मार्ग पर अग्रसित होता है, वो अपने जीवन में देख सकता है कि उस इंद्रिय तृप्ति की जो अभिलाषा है, इंद्रिय तृप्ति का जो वेग है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और रूप गोस्वामी इसे बताते हैं कि जैसे जब व्यक्ति भक्ति में अग्रसित होता है तो जो इंद्रिय तृप्ति के जो वेग हैं, इच्छाएं हैं, वो दंतहीन सर्प के समान हो जाते हैं। यदि कोई सर्प है, उसके दांत नहीं है, तो क्या होगा, वो दांत सर्प जो है वो हानि नहीं पहुंचा सकता, वो विष नहीं डाल सकता है। उसी प्रकार जो है वो इंद्रिय तृप्ति जो है हमारे हृदय में प्रकट होती है, परंतु यदि हम भगवान के शरणागत हैं, यदि हम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में रत हैं, तो वह सेवा जो है वो हमें इतना आनंद प्रदान करती है कि हम इंद्रिय तृप्ति जो है हमारे हृदय में जब प्रकट भी होता है, हम उसको पाने की आकांक्षा नहीं करते हैं। तो यह जो है यह जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान के शरणागत हों, और इसी हेतु यहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र आदि देवता जो हैं वह भी श्वेत द्वीप में गए हैं, और वहाँ पर जाकर भगवान की कृपा के लिए उन्हें प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।